to TCube Gate classes, an initiative by TCube faculties. I am Nihit Bhatnagar. I have completed my MTech from IIIT Gwalior in digital communication. I have qualified GATE exam 6 times. At present, I am working as an assistant professor at SAT Vidisha, Madhya Pradesh. I have more than 4 year teaching experience. So this is the 8th lecture of the lecture series of random variable and random process. At this question, so now इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो दे रखी है. कंसीडर ए गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल x विथ मीन एंड वेरिएंस इज 2 and 4. आपको जो मीन दे रखा है, मीन की वैल्यू दे रखी है 2 एंड जो वेरिएंस है उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 4. सिग्मा वेरिएंस मींस सिग्मा स्क्वायर. ओके, देन द फाइंड द फॉलोइंग्स. तो आप जो डेटा जो आपसे इनके सॉल्यूशन मांगेंगे. ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज और गॉसियन रैंडम वेरिएबल की रिकॉल कर लेते हैं. सबसे पहले बात करते हैं पीडीएफ की. पीडीएफ, तो जैसा कि हम जानते हैं जो पीडीएफ ऑफ गॉसियन रैंडम वेरिएबल इट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डीएक्स दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर e to the power minus x minus mu square upon 2 sigma square. Okay, this is the PDF of Gaussian random variable where mu is the mean and sigma square is the variance, and the CDF f of x that is equal to p probability when x random variable is less than equal to small x random value. Okay, it can be also written as minus infinite to, क्योंकि देखिए यहाँ पर x की जो लिमिट है, the limit of x is less capital X is less than equal to x. It means from minus infinite to x. The limits become minus infinite to x. So here minus infinite to x. Then PDF f of x dx. Okay. सो ये जो डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक ये चाहे कोई भी गॉसियन हो, यूनिफॉर्म हो, कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये सबके लिए कॉमन. इट कैन बी आल्सो रिटन एज 1 minus p x getting equal to x 1 minus p get 1 minus p. देखिए ये जो लिमिट है यहाँ पर इस रीजन में जो लिमिट है आपकी वो लेस देन इक्वल टू 1 माइनस करते तो गेट एन इक्वल टू एक्स हो गया. एंड वी नो वेरी वेल फॉर पी एक्स गेट एन इक्वल टू पी गेट एन इक्वल टू एल एक्स इट्स इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में इफ एक्स इज ए गॉसियन, एक्स इज गॉसियन रैंडम वेरिएबल. X is a Gaussian random variable. That's why it's then this probability become in the form of q function x minus mu upon sigma. That's why जो फंक्शन ये बन जाएगा 1 माइनस, अब x यहाँ रख देंगे तो ये बनेगा q फंक्शन ब्रैकेट में x माइनस mu अपॉन सिग्मा. तो ये जो प्रॉपर्टीज है दोनों आपको याद होनी चाहिए. तो इसी का यूज करके हम इन A to F तक हम इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट ए से. Then our part A. In part A, we have to find the value of p at x equal to 2. Probability at x equal to 2. So we know very well. As we discussed in continuous and variable, the probability at particular point is equal to 0. जैसा कि आप देख सकते हैं, for a continuous random variable. For a continuous random variable, p of probability of x is at a point x denote it's equal to 0 for the continuous random variable. That's why at x equal to 0, probability at a particular point is equal to 0. Now moves towards the part B. Now moves towards the part B.
At part B, we have to find the probability of x that is equal getting equal to 2. Probability of x getting equal to 2. So you can see here, and x is a, we know very well, x is a Gaussian and a variable. X is a Gaussian and a variable. So that's why equal to, for you can see here, for p x getting equal to x equal to q function x minus mu upon sigma. So it's become q function of, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x था, यहाँ पर 2 होते हैं, आ जाएगा 2 minus mu upon sigma. Okay, you can see here sigma, if sigma square equal to 4, then sigma equal to 2. That's why यहाँ हमने put किया q function of 2 minus 2 upon 2. So it's become q of 0, and we know very well the q0 is that q naught is equal to half. q naught की वैल्यू कितनी आती है? हाफ आती है. Part B is equal to half. Now move towards part C of this question. At part C, probability that mod P, probability that mod x that is getting equal to 0, that is getting equal to 0. So you can see here that it can be also written as x is getting 0 union मतलब इस together with x is less than 0. So you can say it is probability that x range from minus infinite to plus infinite. So you can say here it is equal to minus infinite to plus infinite f of x ds. We know very well the property of the PDF. Or if we integrate the PDF from entire x range from minus infinite to plus infinite, its value is equal to 1. So answer of part C is 1. So move towards part D. In part D, we have to find probability of x that is getting equal to 4. Probability of x that is getting equal to 4. So we can see here that जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर x आपका क्वेश्चन एंड वेरिएबल है तो उसका आंसर कितना है? इसका आंसर है q फंक्शन ऑफ 4 minus mu upon sigma. Then putting the value of q, so 4 minus mu is 2 and sigma is also 2. That's become q of 1. तो इसका पार्ट है आपके d का आंसर कितना है? q फंक्शन that value 1. So you can find the value of 1 q the value of 1 by the q function table या complementary error function table. For time being our answer is limited to here. Okay, we no need to check the table. Answer आपका इतना ही है. Now moves toward the question part E. At part E we have to find probability that x is less than 0. X is less than 0. So but we have to find the answer for x. X is a Gaussian and a variable, and we have to find the answer in the form of q function. So I can write here is 1 minus p x getting equal to 0, minus p getting 1 minus, for x getting equal to the, for this its value is q 0 minus mu upon sigma, and it's equal to 1 minus q 0 minus mu is equal to 2, sigma is equal to 2. So it becomes 1 minus q of minus 1. So 1 minus q minus 1. अब चेक करते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है. आप यहाँ देख सकते हैं कि q of alpha plus q of minus alpha it's equal to 1. So we can see here that q of minus alpha equal to 1 minus q alpha. q of alpha equal to q of minus alpha equal to 1 minus q alpha. तो ये वैल्यू उठा करके हम इसका यूज करते हैं. So it's equal to q alpha. So answer of part is q alpha, or not alpha, q of 1. q1. So moves toward part F.
in F, we have to find probability of mod x that is less than equal to 4. You can see here it can be also written as x is less than equal to minus 4 to plus 4. So it's mu equal to 2. It's f of x. Okay. Almost it's a symmetrical. Okay. Then here it is minus 4 and here it is plus 4. Plus 4. Okay. Now you have to find the value of this shaded region. Okay. Area of the shaded region या integration under this shaded region. Okay. So आपको शेडेड रीजन के जो शेडेड रीजन है इसमें आपको इसका एरिया निकालना है या इसका इंटीग्रेशन करना है. आप एक चीज समझ सकते हैं, इस जो प्रोबेबिलिटी की इनइक्वालिटी को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ. इसको मैं लिखता हूँ p. सबसे पहले अगर मैं इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटीग्रेशन फॉर x गेट इक्वल टू माइनस 4, इट मीन्स मैं यहाँ कंप्लीट ये माइनस 4 से लेकर अप टू इनफाइनाइट ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लूँ, इसमें से माइनस कर दूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x गेटिंग इक्वल टू 4. इट मीन्स अब मैं यहाँ से इसमें से इतने इंटीग्रेशन को माइनस कर दूँ तो जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आ जाएगा, आपका शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा. तो हम इसी का यूज करेंगे. So equal to, and you know very well it for x get n equal to minus 4 when x is a Gaussian interval it is equal to q ब्रैकेट में minus 4 minus का mu upon sigma minus q function of 4 minus mu of sigma that is equal to q function of minus का 4 minus का 2 upon 2 minus q function of 4 minus का 2 divided by 2 equal to q function of minus का 3 minus q function of 1. and you know very well जैसा कि आप जानते हैं माइनस का 3 is also equal to 1 minus q of 3 minus q of 1. The answer of this f part is, so we have complete all parts 8 to f and it will cover all the possibilities कि अब और क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. नाउ वी मूव्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज दैट द पीडीएफ ऑफ क्वेश्चन इज गिवन द पीडीएफ ऑफ द क्वेश्चन एंड वेरिएबल x f of x ही दे रखा है आपको. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. तो देखिए कुछ ऐसा आपको दे रखा है. अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता होती है कि ना फर्स्ट वी नो वेरी वेल कि f of x सॉरी जैसा कि हमें प्रॉपर्टीज पता होती है कि इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट f of x dx एंड दैट इज इक्वल टू 1 ये 1 के बराबर होता है. ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं. ये जैसा कि मैंने बताया ये क्वेश्चन ये फॉर्मूलेस आपको कई बार हेल्प करेंगे, तो आप इनको मेमोराइज कर लें. तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए. तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे. ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो ये प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट e to the power minus 80 square dt it's equal to root pi by a. सो ओके, तो इसका यूज़ करते हैं हम. आपको जैसा कि पता है आपको कि यह जब सेकंड प्रॉपर्टी है सेकंड फॉर्मूला, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट
इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस स्मॉल के e to the power minus x plus 1 whole square upon 8 dx that is equal to 1. That is equal to 1. Okay, now we can change the variable. Use the variable separable का यूज करते हैं, substitution method का यूज करते हैं. So let x plus 1 whole square divided by 8, इसको हमने m square by 2 बोल दिया. इसको हमने क्या बोल दिया, m square by 2. ओके, सो 2 से ये 8 गया तो 4 बन गया. देन इट विल बिकम x plus 1 डिवाइड 2 इक्वल टू m. सो एंड इससे dx कितना आ गया आपका 2dm आ गया. dx इक्वल टू 2dm. ओके, इक्वल टू इंटीग्रेशन. अब आप क्या करेंगे, एक्स के लिए में पुट करेंगे तो जैसे हम माइनस इनफाइनाइट इस एक्स में पुट करेंगे तो ये बनेगा आपका माइनस, ये भी माइनस इनफाइनाइट बनेगा. एंड प्लस इनफाइनाइट पुट करेंगे एक्स की जगह तो ये जो एम की लिमिट बनेगी आपकी एम की, ये भी क्या बन जाएगी आपकी प्लस इनफाइनाइट. ओके, ये चलने दीजिए आप e टू दी पावर. अब जैसा कि आपने यहाँ पर हमने माना कि ये ना अज्यूम किया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 8, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाई 2. तो ये बन जाएगा आपका माइनस एम स्क्वायर बाई 2 एंड डी एक्स इक्वल टू 2dm एंड दैट शुड बी इक्वल टू 1. ये 1 चल रहा है आपका. ओके, देन नेक्स्ट ओके. अब जैसा कि आप देख सकते हैं, आप 2 और k को बाहर ले जाएं, 2k इंटू, अब जो इंटीग्रेशन ये बनेगा 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस m स्क्वायर बाई 2 dm एंड दैट इज इक्वल टू 1. अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है यहाँ से ये कितनी आ रही है, रूट पाई बाई ये. अब a की वैल्यू कितनी है, हाफ है, तो ये इसका ये कितना बन जाएगा, सो फर्दर लिखूंगा आगे, तो ये बन गया 2k इंटू a इक्वल टू हाफ हो जाएगा तो ये बन गया 2 पाई एंड इक्वल टू 1. तो जस्ट बाई k इक्वल टू कितना बन गया आपका, इससे k कितना आ गया, k इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई. k की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 2 रूट 2 पाई. ओके, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k की वैल्यू इतनी आ गई, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसकी वैल्यू रूट 8 पाई. k कितना आ गया 1 अपॉन रूट 8 पाई. तो फर्स्ट पार्ट बी, फाइंड द मीन, फाइंड इट्स मीन. सो आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है आपकी f ऑफ x गॉसियन रैंडम वेरिएबल वो होती है 1 अपॉन 2 पाई e टू द पावर माइनस x माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर. तो कंपेयर, इसको कंपेयर करें अपनी जो गिवन इक्वेशन से, तो k की वैल्यू 1 अपॉन 8 बाई आपने लिख दिया आपने e टू द पावर माइनस x प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 8. तो कंपेयर करने से आपको पता लगा म्यू इक्वल टू कितना आया, -1 आ रहा है. तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -1. एंड वेरिएंस मीन सिग्मा स्क्वायर. सिग्मा स्क्वायर जो होता है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, अब आपको दे रखा है कि 2 सिग्मा स्क्वायर. कंपेयर करें आप दो को, 2 सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 8 है, तो इससे सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई. तो वेरिएंस कितना आ गया आपका, यही क्या आपका वेरिएंस, ये क्या आपका वेरिएंस. नाउ बात करते हैं मीन स्क्वायर वैल्यू की. मीन स्क्वायर वैल्यू इट मींस सेकंड मोमेंट या इट मींस एक्सपेक्टेशन इज. तो आपको जैसा पता है सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, जैसा आपको पता है. अब मीन स्क्वायर की वैल्यू कितनी 4 दे रखी है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस मीन की, अब जो आपका मीन है वो कितना -1 का होल स्क्वायर. इससे पता लगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है. तो मीन स्क्वायर वैल्यू या फिर सेकंड मोमेंट या फिर इसको बोलते हैं टोटल पावर, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 5, ये इसको बोलते हैं मीन स्क्वायर वैल्यू. इसको बोलते हैं सेकंड मोमेंट. ओके, इसी को बोलते हैं सेकंड. ठीक है, नाउ चलते हैं पार्ट सी की तरफ.
फाइंड इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स फॉर द रैंडम वेरिएबल दिस। इसके लिए जैसा आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स जो एक्चुअल जो बेसिक डेफिनेशन जो सबके लिए वैलिड है वो क्या होती है, पी दैट इज एक्स इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू एक्स एफ ऑफ एक्स ओके, ये आती है। अब हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं इसी को, ये बन जाएगा वन माइनस पी। अब लेस देन इक्वल टू एक्स जो था आपका ये बन जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, और यू कैन से व्हेन एक्स इज ए गॉसियन रैंडम वेरिएबल, गॉसियन रैंडम वेरिएबल। एक्स अगर आपका गॉसियन रैंडम वेरिएबल तो इस केस में जो ये फंक्शन है पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ये बन जाता है क्यू फंक्शन की फॉर्म में, क्यू फंक्शन the variable x minus mu upon sigma. Okay, now put the value of mu and sigma. So 1 minus q, mu is equal to minus 1, mu equal to minus 1, sigma equal to 2, so x plus 1 divided by 2. आंसर कितना आ गया आपका? Yeah. Okay, now moves toward the next question. Let दे रखा आपको x with the zero mean and the unity variance. So x जो आपको दे रखा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन जीरो है, वेरिएंस आपका 1 है। तो आपको फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x मॉड ऑफ x, एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड ऑफ x आपको ये फाइंड करना है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड x इक्वल टू ये जो होता है आपका ये होता है इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये वही है। ओके, जैसा हमने देखा था यहाँ पर y इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, इट्स गिवन दे रखा है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y और g ऑफ x इक्वल टू एक्सपेक्टेशन g इन द पीएमएफ और पीडीएफ ऑफ x यूज होती है। अब यहाँ y इक्वल टू क्या है आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मॉड x है, y इक्वल टू क्या मॉड x है, तो इसका यूज करेंगे हम। एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट mod x f of x dx। अब f of अब हम डिफाइन कर लेते हैं f of x pdf of that is equal to 1 upon 2 pi। अब सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 का स्क्वायर e to the power माइनस x माइनस मीन कितना 0 upon 2 into सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी 1। ओके, apply here, so apply करें इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट mod x 1 upon 2 pi e to the power minus x square by 2 dx। अब आप एक चीज देख सकते हैं कि ये इवन फंक्शन है, ये आपका इवन फंक्शन है, इवन इंटू इवन इक्वल टू आल्सो इवन इन फंक्शन। तो ये जो आपकी लिमिट है ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ये आपकी ब्रेक हो जाएगी 0 टू इनफाइनाइट में, आगे 2 लग जाएगा, आगे 2 लग गया इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x। अब मॉड x x बन जाएगा और ये 1 अपन 2 पाई ये बाहर आ गया, आपका कांस्टेंट बाहर आ गया e टू द पावर स्क्वायर बाय 2 dx, ये लग गया। अब हम वही सब वेरिएबल सेपरेबल का यूज कर लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर बाई टी इक्वल टू आप मान लिया टी, सो 2x dx डिवाइड बाई 2 इक्वल टू dt। सो इससे 2 से 2 कैंसिल, तो x dx इक्वल टू dt। ये रखने पर इसमें रखने पर 2 बाई इंटीग्रेशन, और लिमिट यहाँ रखेंगे। अब x की जगह 0 रखेंगे, एक बार इनफाइनाइट रखेंगे, तो उससे जो t की लिमिट आएगी t की ये बनेगी 0, ये बनेगी आपकी इनफाइनाइट। ओके, अब देखिए x dx बन के आपका क्या बन जाएगा dt बन जाएगा, x dx साथ में मिलकर dt बन गया, e टू पावर माइनस ये बन जाएगा माइनस का t। ओके, इज इक्वल टू
अब देखिए ये काटेगा तो ये बन जाएगा रूट, बन गया रूट, ये बन गया आपका रूट 2 पाई। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर माइनस टी एंड फॉर -1 फॉर टी इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, ये रखेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा रूट 2.5। आंसर आ रहा है आपका। ओके, नाउ मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। So let x equal to the Gaussian random variable with mean mu and within sigma square. Okay. If y equal to x plus b, then find the PDF of y. आपको PDF of y चाहिए। आप देख सकते हैं y equal to a x plus b, इसे बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसे बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एक चीज अब जैसे इस चीज को मैं ना इस ये एक टॉपिक आएगा आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन रैंडम वेरिएबल टू अनदर रैंडम वेरिएबल, और वन रैंडम वेरिएबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये टॉपिक आएगा। लेकिन फॉर द टाइम बिन फॉर दिस क्वेश्चन आप थोड़ा मेमोराइज इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर x आपका गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, ये आपका गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, तो अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से जो y बनेगा इट इज आल्सो Gaussian random variable, another Gaussian random variable। इस चीज का ध्यान रखिएगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मीन ऑफ y। सो इट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ax प्लस b। आपने रखा तो अब एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी होती है कि वो डिवाइड होता है, तो ये बन जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ ax प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ b। सो अब देखेंगे तो ये बनेगा a एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, x प्लस, अब कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन सेम वही होता है, एंड एक्सपेक्टेशन x इट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, म्यू दे रखा है, तो कितना बन गया आपका a म्यू प्लस b। ओके, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर, इसे बोलते हैं मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ y या सेकंड मूवमेंट या टोटल पावर ऑफ y, रैंडम वैल्यू ऑफ y। ओके, दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ax plus b whole square equal to expectation of a square x square plus b square plus a b x। okay, so it become a square into expectation of x square plus expectation of b square is also b square, then plus a b expectation of x। okay, this also written as a square expectation of x square plus b square plus a b, and expectation x is equal to mu, it's equal to mu। okay. Now variance of y square, variance of y square equal to expectation of y square minus expectation of y square, that is equal to expectation of y square equal to, that is here this value I am going to write here
that is a square expectation of x square plus b square plus ab mu, then minus expectation of y का whole square. So expectation of y is equal to this value. Put it here and make it square. A mu plus b whole square. Okay, it's become a square expectation of x square plus b square plus 2ab mu minus a square mu square minus b square minus a b mu. You can see here this term cancel, b square से b square cancel. Okay, it's become a square expectation of a square minus a square mu square. अब आप जान सकते हैं कि एक mu square इस, अब जान सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर क्या है आपका mu square के बराबर है. सो इट्स इक्वल टू a square ब्रैकेट में expectation of x square minus expectation of x के whole square, and that is equal to that is variance of x, so it is equal to a square into sigma square. So the तो ये क्या आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका, ये वेरिएंस आ गया इसका. अब बात करते हैं पीडीएफ ऑफ y. मैं लिख रहा हूँ पीडीएफ ऑफ y एफ वाई ऑफ स्मॉल y that is equal to 1 upon root 2 pi then sigma square is sigma y square is equal to a square sigma square, then e to the power minus bracket में x minus mean is equal to the mean is a mu minus का b whole square upon 2 into sigma square so sigma y square, that is to a square into sigma square. That is the complete definition of PDF of random variable y. That is the complete definition of PDF of the random variable. Okay. It is the PDF of the random variable y. So आपको इसमें ध्यान रखना है कि जब भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो आपका जो x आपका गॉसियन रैंडम वेरिएबल है तो उससे रिजल्ट भी क्या होगा, गॉसियन रैंडम वेरिएबल ही प्रोड्यूस होगा. बाकी चीज हम आगे उसमें पढ़ेंगे. वन टू फॉर्म लीनियर और नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन रैंडम वेरिएबल इनटू अनदर रैंडम वेरिएबल, वन मैनी टू वन ट्रांसफॉर्मेशन या वन टू वन ट्रांसफॉर्मेशन वो हम पढ़ेंगे. नाउ मूव्स टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस so the given question language of question is random variable x with uniform density function in the interval 0 to 1. X is a uniform distribution function. That's why now I can write its PDF. Equal to 1 or 0 for x 0 to 1 and for otherwise. ओके fx दे रखा है आपको. नाउ द क्वांटाइज एज फॉलो. आपने इसको कुछ इस तरह क्वांटाइज किया हुआ है आपने. ओके देन एक्सक्यूज द क्वांटाइज वैल्यू ऑफ x द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द क्वांटाइजेशन नॉइस. तो जैसे ये जो पीसीएम के टॉपिक आएगा पल्स कोड मॉड्यूलेशन उसमें आता है क्वांटाइजेशन नॉइस. ओके अब आप देख सकते हैं कि ना क्वांटाइजेशन नॉइस पीसीएम का पार्ट है लेकिन क्वेश्चन आपका किसमें डाल दिया, ठीक है, रैंडम वेरिएबल डाल दिया. तो ऐसे क्लब होकर क्वेश्चन बनते हैं आजकल. चीजें इतनी रिसर्च हो चुकी है, इतना डिटेल में एनालिसिस किया जा चुका है कि अब चीजें ऐसे रिसर्च इसी तरह रिसर्च हो रही है. तो आपको हर तरह से प्रिपेयर करना है. तो नाउ आप देख सकते हैं तो हमें पता है कि जो क्वांटाइजेशन नॉइस क्यू इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन नॉइस इट्स इक्वल टू x माइनस x इट्स इक्वल टू x क्यूब. तो हमें फाइंड करना रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. सबसे पहले क्या करते हैं, ये होती है क्वांटाइजेशन नॉइस. इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन नॉइस, ये होती है. ठीक है अब बात करते हैं मीन स्क्वायर वैल्यू क्वांटाइजेशन नॉइस.
mean square value, it means expectation of q square. It's equal to expectation of x minus x whole square. Can be written as integration minus infinite to plus infinite x minus x whole square f of x dx. ये बन गया आपका. ओके. अब अगर इसका अगर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ क्यू स्क्वायर, ये जो है अपनी, ये मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ कॉन्टेंजेशन नॉइस. अगर इसका रूट ले लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द कॉन्टेंजेशन नॉइस. तो पहले मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इसकी, फिर इसका क्या कर लेंगे, रूट निकाल लेंगे. सो यू नाउ फॉर, अब देखिए लिमिट देखिए, फ्रॉम एक्स रेंडम 0 to 3, जैसा लिमिट दे रखी है वैसे हम इसको ब्रेक करेंगे. नाउ इंटीग्रेशन फ्रॉम कहाँ से 0 to 0.3, 0.0 सॉरी 0 to 0.3, 0 to 0.3 x minus the contingent value of that point is 0, so x minus 0 का square, and the f of x is for region 0 to 1. अब 0 to 1 ये 0.3 या 0.3 to 1 वट एवर कुछ भी हो, इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर वैल्यू है 1 एंड dx प्लस इंटीग्रेशन 0.3 to 1, ये देखिए 0.3 to 1 है, तो x माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी 0.7, तो इट बिकम 0.7 का होल स्क्वायर. द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉर रीजन 0.3 to 1, magnitude is equal to 1, so that's why I write here 1 and dx. okay now you अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे. देखिए ये बन रहा है x स्क्वायर dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा ये बनेगा x क्यूब बाई 3 एंड लिमिट इज 0 to 0.3 प्लस इंटीग्रेशन 0.3 to 1, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 0.49 माइनस 1.4 x dx, ये बन गया. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये बन रहा है 1/3 ब्रैकेट में 0.3 का क्यूब माइनस 0 क्यूब प्लस, अब ये बन रहा है x क्यूब बाई 3 प्लस 0.49 x minus 1.4/2 x square, and put the limit from 0.3 to 1, 0.3 to 1. ये आ गया. अब ये जो चल रहा है ना आपका, ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ क्यू स्क्वायर चल रहा है, ये चल रहा है आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ क्यू स्क्वायर. ओके, जब आप इसको सॉल्व वैल्यू पुट करें सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ आंसर आएगा. ठीक है, मैं इसमें याद लिख देता हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ क्यू स्क्वायर. ये जो आंसर आ रहा है ये आएगा आपको 0.039, लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आपको चाहिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. सो of quantization noise, or that is equal to root over expectation of q square, it's equal to root over 0.039 and 0.039, it's equal to 0.198. The correct option is option B.
Now this is another type of question. So I will discuss this question in tomorrow class. And here you can see x random variable है. जो doesn't mean कि ये Gaussian है कुछ भी है, doesn't mean. Its mean is mu x and the variance is sigma x square. Passes through a linear transformation. आपको linear transformation से पास किया गया such that mu x की वैल्यू mu y की वैल्यू 0 हो जाएगी and sigma y स्क्वायर इक्वल टू 1 दे रखा है आपको. Then find the value of a. Then आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको ये फाइंड करना है. तो चार ऑप्शन से आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है. तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर लिख के बताइएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है. ये क्वेश्चन सिमिलर है, ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन की तरह सिमिलर है, बस ये गॉसियन था यहाँ पर. ये अब ये कुछ नॉर्मल है, अभी ये इसमें डिफाइन नहीं है गॉसियन है कौन सा, एक नॉर्मल है ना वेरिएबल. इस क्वेश्चन को हम टुमारो आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच.